Hello friends, I'm back with lecture 9. In this lecture, we will be discussing about pointers in array. So let's see what is pointer. So pointer is also a variable which points to another variable. Let's see the example. Like here p is pointing to x. तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि p जो है वो x को point कर रहा है through this arrow. But how will the computer get to know that p is pointing to x? कंपाइलर या कंप्यूटर या सिस्टम जो भी आप बोलना चाहो उसको कुछ चाहिए ना कि ओके इस चीज से हमें पता चला कि ये p जो है x को पॉइंट कर रहा है। तो कंपाइलर को कैसे पता चलता है? अगर किसी वेरिएबल में किसी और वेरिएबल का एड्रेस होता है दैट मीन्स इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अनदर वेरिएबल। ऑल्दो हम डिक्लेरेशन के टाइम भी उस वेरिएबल को पॉइंटर के थ्रू ही डिक्लेयर करते हैं, वी विल सी दैट लेटर। ओके, so now address of x is 100 and p is also storing 100. Okay, one more thing, यहाँ पे जो 100 है ये एड्रेस में ले रही हूँ बट एक्चुअल में एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, so don't get confused. We are taking 100 just for the simplicity purpose. Now यहाँ पे जो स्टोर किया है p ने वो भी 100 है एंड x का जो एड्रेस है वो भी 100 है. That means this p is pointing to x. राइट, अब हम इसे प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इंटीजर x इक्वल्स टू 20. ओके, उससे क्या हुआ, मेमोरी में कहीं पे एक x वेरिएबल को स्पेस दे दी गई, इंटीजर डेटा टाइप मतलब 4 बाइट्स की स्पेस दी है और क्या स्टोर किया है 20. ओके, तो हमने एड्रेस ले लिया उसका 100. अब p का जो डेटा टाइप है, जो p का डेटा टाइप होगा वो क्या होगा? वो भी इंटीजर होगा. बट क्यों इंटीजर है? बिकॉज इट इज स्टोरिंग 100? नो. किसी भी वेरिएबल का हम डेटा टाइप कैसे डिसाइड करते हैं? जिस टाइप की वैल्यू वो स्टोर करता है उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं, राइट? जैसे x is storing 20 and 20 is integer, that means the data type of x is integer. But p is storing an address and address are always in hexadecimal form. We can't take hexadecimal as the data type. Okay, and although it is not the value of p. Now what is a value? Value is not this 100 because this is the address. Then how we will find the value? पहले हम p पे जाएंगे and तब हमें पता चलेगा कि p is storing an address. Then we will go to that address. Then we will come here, this 100 address. Okay, now this x variable which is at 100 location, I mean the location, the address. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू है 20. It means that p is also having the value 20 because through this address p can come here because 100 के थ्रू p जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है एंड यहाँ पे ये 20 वैल्यू स्टोर है, दैट मीन्स p is also having the value 20. But that doesn't mean that p is equals to x. Although p and x are storing the same value 20, but they are not equal. And why they are not equal we will discuss later. Now integer pointer p. This is how we will declare a pointer. We will write the data type and the data type will be the data type of the value. Or in the other words we can say that the data type of the pointer will be the data type of the variable that the pointer is pointing, right? So integer pointer p. अब ये जो एस्ट्रिक है या फिर ये जो स्टार है या जो भी आप लोग इसे बोलते हो, इससे हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं. ओके, नाउ p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x. It means that we are storing address of x in p. Okay, I think this much is clear, right? Now printf %p. Now what is %p?
सपोज हम कोई इंटीजर प्रिंट करवाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज डी। एंड अगर हम कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तब हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज एफ। सो जब हम कोई एड्रेस प्रिंट करवा रहे होते हैं ना, कोई भी एड्रेस, we can use percentage p, percentage u, percentage x. It depends on the compiler. Okay. So now percentage p, address of x. मतलब हम क्या print करवा रहे हैं? We are printing address of x. Now what is the address of x? 100. The address of x is 100. Right? Now again we are talking about address because we are using percentage p. Now we are printing p. p means जब हम सिर्फ p लिख देते हैं, कोई वेरिएबल लिख देते हैं, तब क्या प्रिंट होता है, जो भी वो स्टोर कर रहा होता है वो प्रिंट होता है. नाउ p is storing 100, so this statement will print 100, and now here 100 is the address, that's why we are using percentage p. Now printf percentage d pointer p. Now we are not talking about address, we are talking about integer, right, because we are using percentage d. तो यहाँ पे जो पॉइंटर p है इसको हम बोलते हैं डीरेफरेंस करना, or we can say dereferencing, because pointer p here means we are pointing to the value. Okay, and p की जो वैल्यू है वो 100 नहीं है. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो p है that is pointing to a variable and that variable is containing some value. तो जो p की वैल्यू है वो भी 20 है, x की जो वैल्यू है वो भी 20 है. तो जब हम डीरेफरेंस करते हैं it means we are talking about the value. p जो पॉइंटर है यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 20. सो दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट 20. ओके, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो 100 प्रिंट करेगा, बट इट डजंट मीन दैट p एंड x आर इक्वल, क्योंकि वी कांट इक्वेट वेरिएबल एंड द पॉइंटर. हियर x इज द वेरिएबल एंड p इज द पॉइंटर. Okay, we can equate two variables, two pointer, but we can't equate a variable that is x and a pointer that is p. Right? Now अगर आपको डीरेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो हम इसको एक और तरीके से देख सकते हैं. ये मेरा खुद का लॉजिक है दैट डीरेफरेंसिंग मीन्स रेफरेंसिंग का उल्टा. ओके, अब रेफरेंस मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि हम यहाँ पे इसके रेफरेंस के थ्रू गए, किसी एक पर्सन को हम रेफरेंस बनाते हैं, उसके थ्रू हम कहीं पे जाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पे जो p है ये 100 के रेफरेंस से x पे गया, इट मीन्स रेफरेंसिंग. p जो ये x पे, जो ये p x पे पॉइंट कर रहा है, दिस इज रेफरेंसिंग. अब डीरेफरेंसिंग मतलब इसका उल्टा, जब p x से वापस जाएगा, राइट. अब जब ये वापस जाएगा तो इट मीन्स ये कुछ लेके जाएगा यहाँ से, that will be 20, the value of x. तो जब भी हम डीरेफरेंसिंग की बात करें, जब भी मतलब यहाँ पे पॉइंटर p लिखा होगा तो हम क्या सोचेंगे कि पहले इसने रेफरेंस किया, या फिर जब वापस आया तो 20 को साथ में वापस लेके आया. मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मैंने भी इसको स्टार्टिंग में ऐसे ही समझा था एंड ये सही में याद रहता है.